My dear students, welcome to Methodological. Let us start the session. The third session on time, speed, distance, CAT previous year questions. So the first question is from CAT 2020. Anil, Sunil and Ravi run along a circular path of length 3 kilometers starting from the same point at the same time and going in the clockwise direction. If they run it at the speeds of 15 km per hour, 10 km per hour and 8 km per hour respectively, so how much distance in kilometer will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point? So the circular track length is given, that is 3 kilometers, and their speeds are 15, 10 and 8 km per hour respectively. So the question is asking how much distance Ravi would have run when Anil and Sunil meet for the first time at the starting point. Okay, so time taken by Anil in completing one round कितना होगा? 3 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है, स्पीड है अनिल की 15, तो टाइम टेकन बाय अनिल इन कंप्लीटिंग वन राउंड विल बी 3/15, एक्चुअली 1/5 hours or 12 minutes. Time taken by Sunil in completing one round, that will be equal to 3/10, which is 18 minutes. 3/10 into 60, 18 minutes. So Anil is completing one round is 12 minutes, Sunil is completing one round in 36 minutes, and question is saying कि रवि ने कितना रन किया होगा when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point. अगर starting point में मिले हैं तो यानी कि their number of rounds completed will be integers. तो कब मिले होंगे? First meeting time will be LCM of these two values, LCM of 12 and 18, मल्टीपल होगा दोनों का, तभी तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इंटीजर होंगे. So that will be 36 minutes. 36 minutes will be the time. So distance traveled by Ravi will be equal to speed of Ravi, that is 8 multiplied by distance. Time कितना है? 36, यानी कि 36 is 3/5 hour. 8 into 3/5, 24/5, which is 4.8 kilometers. Option D is the answer. 4.8 kilometers. Clear है? Okay. ऐसे भी सोच सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन को कि फॉर अनिल एंड सुनील द रेशियो ऑफ स्पीड्स बिकॉज दे आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड का रेशियो क्या आएगा? बिकॉज अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस एंड स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल. तो रेशियो ऑफ स्पीड फॉर अनिल एंड सुनील इज 15:10, which is 3:2. So ratio of speed is 3:2, and this implies, this is in the simplest form, when Sunil has traveled 3 rounds, when Anil has traveled 3 rounds, Sunil ने travel किए होंगे 2 rounds. स्पीड का रेशियो क्या है? 3:2. तो डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं. when Anil has traveled 3x distance, Sunil must have traveled 2x in the same time. तो वही 3 rounds and 2 rounds. ठीक है, so when Anil has traveled 3 rounds, Sunil has traveled 2 rounds. के बीच का गैप कितना आ रहा है? 1 राउंड का, यानी कि दे आर मीटिंग एट एग्जैक्टली द स्टार्टिंग पॉइंट. Isn't it so? अनिल ने 3 राउंड्स ट्रैवल किए हैं, कंप्लीट इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स है, सुनील के राउंड्स भी नंबर ऑफ इंटीजर है, और बीच का डिस्टेंस है 1 राउंड का, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग. तो अनिल ने ट्रैवल किया 3 राउंड, सुनील ने ट्रैवल किया 2 राउंड्स, किसी भी एक के लिए निकाल लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि सुनील हैज ट्रैवल्ड 2 राउंड्स और क्वेश्चन पूछा है रवि ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. सुनील का स्पीड है 10, रवि का स्पीड है 8. तो इन 1 hour Sunil travels 10 kilometers and Ravi travels 8 kilometers. Basically, in the same time, the ratio of distance traveled by them is 5:4. यानी कि if Sunil travels 5 units, तो Ravi travels 4 units. तुम्हें समझाने के लिए इतना सब लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज एग्जाम में तुम स्ट्रेट अवे एक बार बात समझ में आ जाएगी तो फट से सॉल्व कर लोगे इसके बाद. क्योंकि सुनील हमें पता है 2 राउंड ट्रैवल किया, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सुनील इज 6 किलोमीटर्स बिकॉज 1 राउंड इज ऑफ 3 किलोमीटर्स. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रवि विल बी इक्वल टू कितना होगा? 4/5 होगा. तो 4/5 into 6 यानी कि 24/5, 4.8 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस. ये भी समझ में आना चाहिए. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cars travel the same distance starting at 10 AM and 11 AM respectively on the same day. They reach their common destination at the same point of time. So they are starting at a gap of 1 hour, but reach कर रहे हैं at the same time. डेस्टिनेशन सेम है. द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 hours, एटलीस्ट यानी कि यहां पे
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, एटलीस्ट 6 आवर्स, देन हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ द सेकंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार क्या होगा. ओके, सो कार नंबर 1 started at 10 AM. डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल किया है. कार नंबर 2 स्टार्टेड एट 11 AM. डिस्टेंस सेम है बट टाइम में फर्क होगा. कार नंबर 1 का ट्रेवल टाइम कितना होगा? अगर t आवर्स है तो कार नंबर 2 के लिए दैट विल बी t-1 बिकॉज दे हैव रीच्ड एट द सेम टाइम पे पहुंचे. स्टार्ट करने में 1 आवर का गैप है, तो दैट इज वाई कार 1 का ट्रेवल टाइम इज t आवर्स, कार 2 का ट्रेवल टाइम इज t-1. और सिंस डिस्टेंस इज सेम, so if distance is same, in that case time is inversely proportional to speed, or time and speed are inversely proportional because time into speed, that is distance, that is constant. और time का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? time is t and t-1 for car 1 and car 2. तो time का रेशियो है t is to t-1. तो speed का रेशियो will be just opposite, t-1 is to t. And question is asking highest possible value of percentage by which the speed of the second car could exceed that of the first car. तो speed का रेशियो आ रहा है t-1 and t, तो there is a difference of 1 on the base of t-1. ठीक है, कार 2 का जो स्पीड है that is 1 higher in comparison to t-1. तो 1 by t-1 will be the percentage value. ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बट वैल्यू तो इसी पे डिपेंड करेगा. तो वैल्यू विल डिपेंड ऑन 1 upon t-1. सो इफ वी हैव टू मैक्सिमाइज हाईएस्ट पॉसिबल परसेंटेज चाहिए, so if you have to maximize highest possible value, the percentage by which the speed of the second car could exceed that of the first car, if you have to maximize this value, so denominator should be minimum, क्योंकि t-1 जितना मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर जितना मिनिमम होगा, उतना ही ज्यादा 1 by t-1 मैक्सिमम होगा. So t-1 should be as minimum as possible. And question is saying the first car traveled for at least 6 hours. So t is greater than equal to 6. And we need to find out t-1 को मिनिमम करना है, तो t को मिनिमम कर दो, t minimum will be equal to 6. सो 1 बाई t-1 को मिनिमम करोगे तो t-1 मिनिमम आ जाएगा हमारा 5, बिकॉज दैट विल t मिनिमम -1, दैट विल बी इक्वल टू 5. तो 1 by 5 विल बी द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू. सो 1 by 5 इज 20%. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Vimla starts for office every day at 9 AM and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 km per hour. She is late by 6 minutes if she drives at 35 km per hour. 40 की स्पीड से she is reaching exactly on time, but 35 की स्पीड से she is 6 minutes late. One day she covers 2/3 of the distance to office in 1/3 of the usual time. तो सबसे पहले usual time find out करेंगे, तब तो समझ में आएगा कितना टाइम हो रहा है. ठीक है, and then stops for 8 minutes. तो the speed in km per hour at which she should drive the remaining distance to reach office exactly on time. So what will be that time? Okay, find out करते हैं. So since in all of these cases she is going from home to office, home to office, isn't it so? So at first two cases her speed is 40 and 35. So distance same है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हमें देखना है क्या चीज कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है. इन जनरल इनमें से कोई एक चीज कांस्टेंट होगा. एक्सेप्शनली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, उनको सॉल्व करने का तरीका भी हमें आता है, वो भी सीख चुके हैं. तो इफ डिस्टेंस इज सेम, सो इन दैट केस स्पीड एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और स्पीड की वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट केस में 40 है, सेकंड केस में 35 है. तो स्पीड का रेशियो आ रहा है हमारा 8:7 का, तो टाइम का रेशियो विल बी 7:8 का. And question is saying she is late by 6 minutes in the second case. तो सेकंड केस में she is late by 6 minutes, यानी कि जो गैप है बीच का 7 और 8 का 1 यूनिट का गैप है. This 1 unit is equal to 6 minutes. 1 unit is 6 minutes. So if 1 unit is 6 minutes, तो 7 units कितना हो जाएगा हमारा? What will be the value of 7 minutes? 7 units कितना हो जाएगा हमारा? This will be equal to 7 into 6, 42 minutes. डिस्टेंस निकल जाएगी यहां से, बिकॉज स्पीड इज 40, टाइम इज 42 मिनट्स. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 40 इंटू टाइम को भी आर में कन्वर्ट करो इंटू 42 by 60. तो 2/3, 2 into 14, 28 किलोमीटर इज द डिस्टेंस. 28 किलोमीटर इज द डिस्टेंस.
और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम, दिस 40 वाला केस इज द यूजुअल टाइम। ठीक है, सो वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 28 है, 28 इंटू 2/3 डिस्टेंस शी हैज कवर्ड इन 1/3 ऑफ द टाइम, तो टोटल टाइम है 42 मिनट्स, 1/3 टाइम विल बी 42 इंटू 1/3, दैट इज 14 मिनट्स। So 14 minutes में she has covered the 2/3 distance, remaining distance is 28 into 1/3, and then she stops for 8 minutes. So after this she stops for 8 minutes. So for 8 minutes she is not traveling at all. Remaining time कितना बचेगा? The speed at which she should drive the remaining distance to reach office exactly on time. तो 14 minutes she has elapsed in covering 2/3 distance, 8 minutes का break लिया, 14 plus 8 total हमारा कितना हो गया? 22 minutes has already elapsed. और टोटल टाइम उसको लेना है 42 मिनट्स का, टोटल टाइम लेना है 42 मिनट्स का, तभी तो ऑफिस पे एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुंचेगी। तो फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस टाइम टेकन शुड बी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में शी शुड कवर दिस डिस्टेंस 28 इंटू 1/3, तो स्पीड रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड 28/3 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 20 मिनट्स, यानी 20/60 या 1/3 आवर्स, 20/60 हो गया। ठीक है, विच इज 1/3 आवर्स, तो हमारा स्पीड आ जाएगा इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर, स्पीड विल बी 28 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, बट ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत नहीं था, हमें टाइम तो समझ में आ गया था, टाइम इज 42 मिनट्स। ठीक है, टाइम टोटल इज 42 मिनट्स यूजुअल टाइम। ओके, और यूजुअल स्पीड कितना है? स्पीड यूजुअल दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम यूजुअल इज 42 मिनट्स। सो द फर्स्ट 2/3 of the distance she has covered in 1/3 time. तो if distance is d, तो 2d/3 she has covered in 1/3 time, यानी कि 14 minutes में. Then she has taken a break of 8 minutes. तो remaining time is, जिसमें कि कवर करना है remaining distance which is d/3 only. So that has to be covered in 20 minutes. ठीक है, d/3 distance has to be covered in 20 minutes. Now think about it. In general d/3 distance कवर करने में टाइम कितना लगता है? विमला used to cover d/3 distance 1/3 distance in 1/3 time. 42 मिनट्स है, यानी 1/3 टाइम यानी 14 मिनट्स में. तो यूजुअली शी कवर्ड d/3 डिस्टेंस इन 14 मिनट्स, बट टुडे शी हैज एक्स्ट्रा टाइम, शी कैन कवर द डिस्टेंस इन 20 मिनट्स. तो डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो क्या आ रहा है? 14:10, यानी कि 7:10. 14:20, 7:10 का रेशियो आ रहा है. तो स्पीड का रेशियो आएगा 10:7, और 10 की वैल्यू है 40, बिकॉज यूजुअल स्पीड इज 40 विच इज 10 × 4. तो आज की स्पीड हो जाएगी 7 × 4, 28 किलोमीटर पर आवर. That should be the speed, option B. ओके, तो ऐसा हमें डिस्टेंस निकालने का इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं था. डिस्टेंस अगर टिपिकल वैल्यू निकल रहा हो तो फिर वहां पे उतना एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि जरूरत ही कुछ नहीं है. स्ट्रेट अवे में क्या चाहिए? हमें टाइम ही तो चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन कैन यूज 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स which move at 10, 20 and 30 km per hour respectively to reach from A to B. Amal took each mode of transport for 1/3 of its total journey time, while Bimal took each mode of transport for 1/3 of the total distance. तो परसेंटेज बाय विच बिमल्स ट्रेवल टाइम एक्सीड्स अमल्स ट्रेवल टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड. ठीक है, परसेंटेज बाय विच बिमल्स ट्रेवल टाइम एक्सीड्स अमल्स ट्रेवल टाइम, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? सो फर्स्ट केस में अमल किस बात पे अमल कर रहा है? अमल इज ट्रेवलिंग बाय ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1/3 ऑफ हिज टोटल जर्नी टाइम. तो हिज टाइम इज इक्वल, टाइम फॉर ईच मोड इज इक्वल. ठीक है, लेट अस से टाइम इज टी. मान लेते हैं टाइम टी है, तो डिस्टेंस टोटल क्या आ जाएगा? इफ टाइम इज टी, डिस्टेंस टोटल विल बी, फर्स्ट फेज में क्या है? स्पीड 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है. तो टाइम टी है तीनों केसेस में, तो 10t प्लस 20t प्लस 30t. ठीक है, टाइम लेट अस से फॉर ईच फेज इज t. तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 60t. ओके, इन केस ऑफ बिमल, Bimal took each mode of transport for 1/3 of total distance. तो distance is equal.
फॉर बिमल डिस्टेंस फॉर ईच मोड इज इक्वल, और अगर डिस्टेंस हमने एक फेज में यानी फॉर अमल वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस इक्वल टू 60t, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस फॉर वन पार्ट विल बी इक्वल टू 20t. क्लियर है? 20t विल बी द डिस्टेंस फॉर वन पार्ट. सो ट्रेवल टाइम फॉर बिमल कितना आ जाएगा? फॉर द फर्स्ट फेज डिस्टेंस इज 20t, स्पीड इज 10, 20t by 10. फॉर द सेकेंड फेज डिस्टेंस इज 20t, स्पीड इज 20. फॉर द थर्ड फेज डिस्टेंस इज 20t और स्पीड है 30. तो दिस इज 2t प्लस t प्लस 2t by 3. तो दिस इज 3t प्लस 2t by 3. एलसीएम ले लोगे 3, दिस विल बी 3 into 3 9t प्लस 2t 11t by 3. और फॉर अमल द टाइम वॉज 3t, t प्लस t प्लस t, 3t. फॉर विमल द टाइम इज 11t by 3. और क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज बाय विच बिमल्स ट्रेवल टाइम एक्सीड्स दैट ऑफ अमल्स ट्रेवल टाइम. अमल का ट्रेवल टाइम और बिमल का ट्रेवल टाइम रेशियो क्या है? दिस इज 3t इज टू 11t by 3. t से t हो गया कैंसिल और 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बी 9 is to 11. यानी कि बिमल का ट्रेवल टाइम 2 यूनिट्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अमल्स ट्रेवल टाइम. तो 2 यूनिट्स ज्यादा है, बेस क्या है 9, तो 2 by 9 एक्स्ट्रा है. ठीक है, 2 by 9 एक्सीड कर रहा है और 2 by 9 इज 22.22%. तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके. कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो एक और अप्रोच हम फॉलो कर सकते थे, उसको भी सीख लेते हैं. वैल्यू भी एज्यूम कर सकते थे. इफ यू हैड टू टेक अजम्पशन ऑफ वैल्यू, तो हमारा क्या स्पीड आ रही है 10, 20, 30, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा. और क्योंकि 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 60 into 3, लेट अस अज्यूम डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर. डिस्टेंस इज 180. तो फॉर अमल के लिए क्या है? टुक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1/3 ऑफ टोटल जर्नी टाइम. तो 1/3 ऑफ द जर्नी टाइम. ठीक है, सो अमल के लिए यहां पे हमारा क्या कांस्टेंट है? टाइम सेम है. ठीक है, टाइम सेम है, इजंट इट सो? तो अगर टाइम हमारा सेम है, टाइम इज इक्वल, तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड. और स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड इज 1:2:3, 10, 20, 30, 1:2:3 है रेशियो स्पीड का. तो यही रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी आ जाएगा. 1 + 2 + 3 is 6. यही सेम रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी आ जाएगा. डिस्टेंस भी हमारा 1:3 के रेशियो में ब्रेक होगा. टोटल 6 यूनिट्स है और 6 यूनिट्स इक्वल टू 180, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30. अब किसी भी एक फेज में टाइम निकाल लो, किसी भी एक फेज का टाइम कैलकुलेट कर लो. तो फॉर फर्स्ट पार्ट 30 इज द डिस्टेंस, स्पीड इज 10, तो ट्रैवल टाइम कितना होगा? इफ दिस टाइम इज t, दिस विल आल्सो बी t, दिस विल आल्सो बी t, तो 3t विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक फेज का टाइम कितना है 30 by 10, तो टोटल टाइम इज 9 hours. 9 hours हो गया. फॉर बिमल 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, टोटल टाइम कितना आ जाएगा? दैट विल बी 60, 60, 60. टोटल डिस्टेंस होगा 60, 60, 60 फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. 60 by 10 प्लस 60 by 20 प्लस 60 by 30, टोटल आ जाएगा हमारा 6 + 3 + 2 11 hours. सो 9 hours है फॉर अमल, 11 hours फॉर विमल, 2 hours एक्स्ट्रा, तो 2 by 9 आंसर विल बी 20. ये भी सोच सकते हो. क्या ये क्लियर है? ठीक है. और लास्ट अप्रोच, एक और अप्रोच देते हैं सो दैट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है फंडा है और भी बेटर क्लियर हो जाए, सो दैट हम और भी वैराइटीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए. दैट इज कि फर्स्ट केस में व्हेन अमल इज देयर, तो ही इज ट्रैवलिंग ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर 1/3 ऑफ हिज टोटल जर्नी टाइम. यानी कि टाइम सेम है, टाइम सेम है फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड व्हेन टाइम इज इक्वल, तो यहां पे एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं. एवरेज स्पीड क्या होगा? इफ टाइम इज सेम, एवरेज स्पीड इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स. अगर टाइम हमारा सेम है तो एवरेज स्पीड इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स. दैट विल इक्वल टू 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई 3. सो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा 20, स्ट्रेट अवे 20 आ जाएगा. ठीक है. फॉर बिमल डिस्टेंस इज सेम फॉर ईच फेज, एंड इफ डिस्टेंस इज सेम तो एवरेज स्पीड विल बी हार्मोनिक मीन. ठीक है, यहां पे हमारा एवरेज स्पीड थी अरिथमेटिक मीन. व्हेन डिस्टेंस इज सेम, एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन.
of the available distances. और हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3abc, if speeds are abc, तो 3abc upon ab plus bc plus ca. So this will be 3 into 10 into 20 into 30 divide by 10 into 20 plus 20 into 30 plus 10 into 30. Okay, so this will be 3 into 6000 divided by 200 plus 600, 800, 800 plus 300, 1100. 2 0 से गया 2 0, दिस इज 16 to 3, 180 by 11. तो स्पीड हमें मिल गया, एवरेज स्पीड इज 20 एंड 180 by 11. तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल कवर तो सेम ही है, डिस्टेंस टोटल जो कवर किया वो तो सेम ही है, इजंट इट सो? सो हमें स्पीड का वैल्यू मिल गया. स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? 20:180 by 11. So that will be 11:9. तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:11 प्लस 2 एक्स्ट्रा, बेस इज 9. आंसर विल बी 22.22%. बट ये बात भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज नॉट फॉर दिस क्वेश्चन एज सच, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट फॉर एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट उसका भी रिवीजन हो गया एक बार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रेस ऑफ 3 हॉर्सेस, द फर्स्ट बीट द सेकंड by 11 meters and the third by 90 meters. If the second beat the third by 80 meters, so what was the length in meters of the race course? Similar question आ चुका है एक दो बार, अभी देखा हमने लास्ट सेशन में. ठीक है, सो फर्स्ट बीट द सेकंड by 11 meters. If total length is d, this is the first horse, this is the second horse, the distance between them is 11 meters. And first beats the third by 90 meters. So gap between second and third horse कितना है? This gap is 79 meters, 90 minus 11. And when the second one completes the race, when the second horse completes the race, the gap increases to 80 meters. Initially 79 था, अब गैप कितना हो गया? 80 meters का गैप हो गया. So gap has increased from 79 meters to 80 meters. यानी कि गैप हैज इंक्रीज बाय 1 मीटर्स. और कितना ट्रेवल किया है? सेकंड वाला हॉर्स ट्रेवल किया है हमारा इन द सेम टाइम 11 मीटर्स. सो व्हेन ही ट्रेवल्स 11 मीटर्स, द गैप इंक्रीजेस बाय 1 मीटर. गैप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड हॉर्स इंक्रीजेस बाय 1 मीटर. और टोटल गैप कितना है हमारा? टोटल गैप इज 80 मीटर्स. तो टोटल ट्रैक कितना होगा? 11 into 80, बिकॉज 1 मीटर्स के लिए 11 मीटर्स ट्रेवल करता है, तो 80 मीटर्स के लिए कितना ट्रेवल करेगा? 11 into 80, 880 मीटर्स. तो ट्रैक लेंथ विल बी 880 मीटर्स. और हमेशा उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे हु हैज रीच द फिनिशिंग लाइन. तो टू हैज रीच द फिनिशिंग लाइन, दैट इज वाई टोटल ट्रैक लेंथ विल बी 880. ओके, टोटल ट्रैक लेंथ हमारा आ जाएगा 880. क्लियर? सेकंड अप्रोच ये हो सकता था कि स्पीड्स को हम कंपेयर कर लेते, स्पीड का रेशियो ले लेते दोनों केसेस में. और अगर टोटल ट्रैक लेंथ हमारा d था, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेकंड हॉर्स एंड थर्ड हॉर्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना है? d माइनस सेकंड हॉर्स के लिए d माइनस 11, थर्ड हॉर्स के लिए d माइनस 90, और सेकंड सिनेरियो में दिस इज d माइनस d है टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर द सेकंड हॉर्स, और थर्ड के लिए d माइनस 80. एक सेकंड, d माइनस 79 था या 90 था? 90 था. d माइनस 11 बाई d माइनस 90, दैट इज इक्वल d अपॉन d माइनस 80. ओके, तो ये सॉल्व हो जाएगा यहां से. क्या है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The wheels of a bicycle A and B have radii 30 cm and 40 cm respectively. While traveling a certain distance, each wheel of A required 5000 more revolutions than each wheel of B. If bicycle B traveled this distance in 45 minutes, then speed क्या होगा in km/h of the second bicycle B. तो the radii of the wheels is 30 cm and 40 cm. And while traveling a certain distance, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, each wheel of A required 5000 more revolutions. ठीक है, तो जब व्हील ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन व्हील. ठीक है, लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन व्हील, और दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर of the wheel, or circumference.
ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी पेरीमीटर ऑफ द व्हील मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, बट सिंस डिस्टेंस इज सेम और डिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर बोथ बाइसिकल्स, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा उसके रिवॉल्यूशन कम होंगे, isn't it so? Because perimeter into revolutions is constant, p into n is constant. So perimeter will be inversely proportional to number of revolutions, and perimeter for a wheel, for a circle, that is 2 pi r. और radii given है हमें, तो perimeter is proportional to radii. ठीक है, तो radii का जो रेशियो वही सेम रेशियो पेरीमीटर का होगा। radii का रेशियो क्या आ रहा है 30:40, यानी कि पेरीमीटर का रेशियो भी होगा 3:4, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का रेशियो n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा, बिकॉज डिस्टेंस कांस्टेंट है, दैट विल बी 4:3। एंड वी नो कि a हैज, ईच व्हील ऑफ a हैज रिक्वायर्ड 5000 मोर रिवॉल्यूशंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देम 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 रिवॉल्यूशंस। 1 यूनिट इज 5000 रिवॉल्यूशंस, और अगर 1 यूनिट 5000 है, 3 यूनिट्स कितना हो जाएगा 15,000 revolutions, और this distance has been covered by bicycle B in 45 minutes. 45 minutes, तो distance कितना आ जाएगा, distance will be equal to 5000 into 3, 15,000 revolutions of bicycle B का wheel which is 40 centimeter. तो 1 perimeter कितना आएगा, perimeter का वैल्यू क्या आएगा, perimeter multiplied by 15,000 revolutions, perimeter will be equal to 2 pi r. तो 2 pi into r is 40 in centimeters, तो डिवाइड कर दोगे 100 से, डिस्टेंस आ जाएगा मीटर्स में, और हमें चाहिए किलोमीटर्स में, तो 1000 से फर्दर डिवाइड कर दो, ठीक है। बट 15,000 रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे 15,000 से, क्या है क्लियर है, वी हैव डिवाइडेड बाय 100 टू मेक इट इनटू मीटर्स एंड देन डिवाइडेड बाय 1000 टू मेक इट इनटू किलोमीटर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 15,000 व्हिच इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, इस 1 0 से ये 0 गया, और 15 इंटू 4 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाई 10 12 पाई, तो डिस्टेंस इज 12 पाई किलोमीटर्स, बट दिस डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन 45 मिनट्स, तो स्पीड विल बी इक्वल टू 12 पाई डिवाइडेड बाई 45 मिनट्स इज 3/4, 12 पाई इंटू 4/3, यानी कि दैट विल बी 16 पाई किलोमीटर पर आवर, 16 pi kilometer per hour. Option C will be the answer. Okay, clear? Next question. John jogs on track A at 6 km per hour and Mary jogs on track B at 7.5 km per hour. The total length of tracks A and B is 325 meters. While John makes 9 rounds of track A, Mary makes 5 rounds of track B. In how many seconds will Mary make 1 round of track A? Brilliant question, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सवाल है। Pause the video and solve it yourself. And then when I give you the solution, then make sure to comment अगर तुमसे गलती हुई है कहीं पे, ठीक है, because this question is made in such a way that chances are that you will be making a mistake. या तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, वो उसमें अटकोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी अटके एंड तक पहुंचे तो भी चांसेस आर दैट यू विल मेक अ मिस्टेक। थीटा क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी गिवन नहीं है। तो जॉन जॉग्स ऑन ट्रैक ए, स्पीड है जॉन का 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी जॉग्स ऑन ट्रैक बी और स्पीड है मैरी का 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड्स आर 6 and 7.5। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक्स ए एंड बी इज 325। एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रैक ए का लेंथ है कैपिटल ए, ट्रैक बी का लेंथ है कैपिटल बी, तो ए प्लस बी इज 325 मीटर्स, दैट इज ऑल्सो गिवन। While John makes 9 rounds of track A, Mary makes 5 rounds of track B. So that implies कि same time में distance travel कर रहे हैं। तो John is making 9 rounds of track A, Mary is making 5 rounds of track B in the same time. So time is same. Same time में distance traveled by, एक second, same time में distance traveled by John and Mary. John is traveling 9 rounds of track A, यानी कि distance traveled is 9 है for John and 5B for Mary. This is distance. ठीक है, टाइम सेम है। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ देम आर 6 and 7.5। तो टाइम क्या होगा,
टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी टाइम, डिवाइड कर दो, तो दीज टू शुड बी इक्वल बिकॉज टाइम इज इक्वल। ठीक है, टाइम इक्वल है तो दीज टू शुड बी इक्वल। लेकिन 9a/6 दिस इज इक्वल टू 5b/7.5, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अदरवाइज डेसिमल हटा के फिर कर लोगे तो भी 2/3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 3/2। सो a/b विल बी इक्वल टू 4/9। तो ट्रैक लेंथ का रेशियो आ गया a/b इज इक्वल टू 4/9, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, b इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, टोटल कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स, और 13 यूनिट्स की वैल्यू है हमारी 325, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे 25, 1 यूनिट विल बी 25 मीटर्स, एंड हेंस ट्रैक ए का लेंथ आ जाएगा 100 मीटर्स, 4 यूनिट्स है, ट्रैक बी का लेंथ आ जाएगा 925 यानी कि 225 मीटर्स। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मेनी सेकंड्स विल मैरी मेक 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए, इन हाउ मेनी सेकंड्स विल मैरी मेक 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए। तो ट्रैक ए का लेंथ कितना है 100 मीटर्स, मैरी अभी तक क्या कर रही थी, सेकंड ट्रैक का यानी ट्रैक बी का राउंड ले रही थी। तो यहाँ पे गलती होने का एक स्कोप तो ये है कि तुम फाइनली सब कुछ सही करने के बाद भी ये कैलकुलेट कर दो कि ट्रैक बी का 1 राउंड लेने में मैरी को कितना टाइम लगेगा। चांसेस आर कि तुम ये ट्रैक ए में जो लास्ट वर्ड है ना, ये ए को मिस कर दो और ए की जगह बी पढ़ लो। ऐसी गलती होती है बार बार हमसे, ठीक है, हम सबसे होती है, तो दैट इज 1 पॉसिबल चांस। ठीक है, अगर पढ़ लिया सही से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही से किया और सब कुछ सही से पढ़ा तो बेस्ट है। ओके, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर बिग टाइम विल बी इक्वल टू 1 राउंड ऑफ ट्रैक ए का लेंथ क्या है 100 मीटर्स, स्पीड ऑफ मैरी क्या है दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो 100/7.5, और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, डेसिमल हटाओगे 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से दिस विल बी 200, 75 25 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, 3 से 6 बचेगा, 8 × 6 विल बी इक्वल टू 48 सेकेंड्स। फाइनल आंसर विल बी 48 सेकेंड्स। क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cyclist leaves A at 10 a.m. and reaches B at 11 a.m. So leaves A at 10 and reaches B at 11. Starting from 10:01 a.m. every minute a motorcycle leaves A and moves towards B. So 10 and 1 a.m. पे one motorcycle starts from A to B. ठीक है, motorcycle starts from A to B. बाइक नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी एंड एवरी मिनट अ बाइसिकल लीव्स, यानी कि 10 और 2 AM पे सेकंड स्टार्ट करती है सेकंड बाइक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 45 सच मोटरसाइकिल्स रीच बी बाय 11 AM। 45 सच मोटरसाइकिल्स रीच बी बाय 11 AM। तो 45th मोटरसाइकिल कब स्टार्ट की होगी, पहले स्टार्ट किया 10:01 AM पे, 10:02 पे सेकंड, तो 10:45 पे 45th स्टार्ट की होगी। Bike number 45 started at 10:45 and it reached B by 11 AM. ठीक है, तो 45 bikes have reached B by 11 AM. ठीक है, और 45th रीच की है 11 AM पर, तो कितना ट्रैवल टाइम हो गया, ट्रैवल टाइम सीम्स टू बी 11 - 10:45, 15 मिनट्स का ट्रैवल टाइम है, isn't it so? 15 मिनट्स का ट्रैवल टाइम है, क्या है, क्लियर है? बिकॉज अगर 14 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता, अगर 14 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता, लेट अस से ट्रैवल टाइम वाज 14 मिनट्स, इन दैट केस 10:46 AM वाली बाइक भी तो पहुंच जाती, 14 मिनट्स लेके वो भी 11 AM पे पहुंच जाती, तो ट्रैवल टाइम इज 15 मिनट्स। अगर 16 मिनट्स का ट्रैवल टाइम होता तो फिर 10:45 वाली भी नहीं पहुंच पाती, तो ट्रैवल टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो देयर इज अ कैच, बट अभी फिलहाल के लिए इस बात को ऐसे समझते हैं, फिर बाद में बेटर तरीके से समझेंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ट्रैवल टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स, दैट इज व्हाई टोटल 45 बाइक्स हैव रीच्ड, नॉट 46, नॉट 44, नीदर 44 नॉट 46, एग्जैक्टली 45। ठीक है, तो ट्रैवल टाइम हमारा है 15 मिनट्स का। क्वेश्चन कह रहा है ऑल मोटरसाइकिल्स हैव द सेम स्पीड, ऑब्वियसली दैट इज नीडेड। इफ द साइक्लिस्ट हैड डबल्ड हिज स्पीड, हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम द साइक्लिस्ट हैज रीच्ड बी। तो साइक्लिस्ट ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, और अगर स्पीड कर दिया डबल, स्पीड हो गई 1 से 2, तो टाइम हो जाएगा 2 से 1, बिकॉज डिस्टेंस है सेम। सो ही विल बी रीचिंग इन द सेकंड सिनेरियो एट 10:30 AM, क्योंकि स्टार्ट तो सेम टाइम पे कर रहा है, तो ही विल बी रीचिंग एट 10:30 AM, पॉइंट बी।
question is asking how many motorcycles would have reached B by the time the cyclist reaches B. By the time the cyclist reaches B. Okay. So cyclist is reaching B at 10:30 और मोटरसाइकिल का ट्रैवल टाइम कितना है? 15 मिनट्स का है. तो 10:01 वाली जो स्टार्ट होगी, फर्स्ट मोटरसाइकिल 10:01 AM वाली, that will reach by 10:16. 15 minutes में that will reach. 10:02 AM वाली second bike, that will reach by 10:17. And finally last bike will be 10:15 वाली, because 10:15 AM पे start होगी, that will reach by 10:30 AM. Total number of bikes कितनी हो जाएंगी? 15. 15 bikes will reach cyclist as cyclist reaches the end point B. Option C will be the answer. Option C will be our answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this much clear? ठीक है, अब यहां तक में बात समझ में आई है. अब इसके आगे फर्दर एक बात डिस्कस करते हैं. देखो, थिंक अबाउट इट. वी नो कि ट्रैवल टाइम कैन नॉट बी 14 मिनट्स. ट्रैवल टाइम ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटर बाइक का फ्रॉम A to B ट्रैवल टाइम कैन नॉट बी 14 मिनट्स, बिकॉज इफ इट वाज 14 मिनट्स, इन दैट केस 46th बाइक भी पहुंच जाती डेस्टिनेशन पे. इजंट इट सो? दैट इज नॉट 14. इट इज ऑल्सो नॉट 16, बिकॉज अगर 16 मिनट्स होता ट्रैवल टाइम तो 45th वाली बाइक भी नहीं पहुंच पाती. तो ट्रैवल टाइम ना तो 14 है ना तो 16 है. दैट वी आर फॉर श्योर क्लियर. और 15 से छोटा ही है, या तो एग्जैक्टली 15 है या इट कुड बी लेस देन 15. तो ट्रैवल टाइम हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 15. इज दैट क्लियर? इट कुड ऑल्सो बी लेस देन 15. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वांटेड टू डिस्कस. कि ट्रैवल टाइम हमारा लेस देन 15 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 14 नहीं हो सकता, तो यानी कि इट कुड बी ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 15. थिंक अबाउट इट. अगर ट्रैवल टाइम हमारा लेट अस से 14.5 मिनट्स होता, इफ इट वाज 14.5 मिनट्स, तो क्या फर्क पड़ता? क्या उससे कोई हमारा डेटा पे चेंज होता? स्टिल 10:45 AM वाला बाइक विल बी रीचिंग बाय 11 AM, बट 10:46 AM वाला बाइक विल नॉट बी रीचिंग बाय 11 AM, बिकॉज इसको टाइम लगेगा 14.5. 14.1 भी होता तब भी 10:46 AM वाली बाइक कैन नॉट रीच बाय 11 AM. 14.001 भी होता तो भी नहीं पहुंच पाती. इजंट इट सो? तो 14 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा चलेगा, 14 से बड़ा होगा चलेगा, 15 से छोटा होगा तो भी चलेगा, 15 के बराबर होगा तो भी चलेगा, 15 से बड़ा होगा तो नहीं चलेगा, 14 से छोटा होगा तो भी नहीं चलेगा, तो भी क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. नहीं, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के वी ओनली नीडेड ट्रैवल टाइम टू बी बिटवीन 14 एंड 15. इज दैट क्लियर? ठीक है, बिकॉज अब क्वेश्चन को थोड़ा सा, वैसे तो कैट पीआई क्यों है, बट इसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो दैट और क्लैरिटी है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेम है. सेकंड पार्ट ये है, ऑल मोटरसाइकिल्स हैव द सेम स्पीड इफ द साइक्लिस्ट हैड इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 22.22%. हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स वुड हैव रीच्ड B by the time the cyclist reaches B? Pause the video and try to solve it. ठीक है, स्पीड को इंक्रीज किया हमने 22.22%, विच इज 2/9 से इंक्रीज किया है. यानी कि स्पीड इनिशियली इफ इट वाज 9, नाउ इट विल बी 9 + 2 11. तो स्पीड का रेशियो 9:11 का. तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 11:9 का. टाइम का रेशियो भी 11:9. ओके, सो इनिशियली टाइम वाज 1 आवर. तो अब टाइम कितना होगा? 9/11 into 60, which is 540/11. 11 4s are 44 और बचा 100. 11 9s are 99. So 49 and 1/11 minutes will be the time that the cyclist will take in reaching from A to B. ठीक है, 49 and 1/11 minutes will be the time that the cyclist will take. Isn't it so? Clear है? Okay, now think about it. फर्स्ट मोटरसाइकिल जो हमारा स्टार्ट किया है at 10 AM, 10:01 AM, that will reach by 10:15. ठीक है, 10:15 तक पहुंच जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसको एक सेकंड 10:15 है, 10:16 तक पहुंचेगी. 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 15, और बिटवीन 14 एंड 15 कैन बी देयर, 14 पे इक्वालिटी नहीं होगा. तो 10:16 तक रीच बाय, first bike will reach by 10:16. The second bike of that will start at 10:02, that will reach by 10:17. The third bike 10:03 पे जो start करेगी, that will reach by 10:18 and so on. Similarly 15 का गैप ले लो तो 49 - 15 is 34. तो 10:34 वाली बाइक that will reach by 10:49. Is that clear? यहां तक तो समझ में आता है. यानी कि 34 बाइक्स फॉर श्योर, 34 बाइक्स will surely reach B.
दैट वी नो फॉर श्योर. रीच बी बाय दिस टाइम 49 and 1/11 minutes. ठीक है, बट 35th बाइक उसके बारे में हमें नहीं पता, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन एग्जैक्ट ट्रेवल टाइम जिसका इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं है. सो 10:35 वाली बाइक के लिए वी डू नॉट नो फॉर श्योर, बिकॉज if travel time just in case is 14 and 1/11 minutes, if this is this much time, तो it will reach by 10, 49 and 1/11. और इससे भी कम हुआ तो भी पहुंच जाएगी. ठीक है, तो फॉर द 35th बाइक वी हैव नो आइडिया. ठीक है, तो डेटा इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन whether बाइक 35 reaches or not. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन में ये तो गिवन था कि 14 से 15 के बीच में ट्रैवल टाइम होगा, 15 भी हो सकता है एग्जैक्टली, बट एग्जैक्टली कितना है दैट वी डू नॉट नो. दैट इज वाई डेटा विल बी इनसफिशिएंट, और इस केस में आंसर विल बी ऑप्शन डी एंड नॉट ऑप्शन सी. देखो बी तो आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है, बट ए और सी में से कोई आंसर हो सकता है. अगर ए और सी मेंशन्ड होता तो वो भी आंसर हो जाता, बिकॉज 34 और 35 विल बी द आंसर. ठीक है, आंसर विल बी 34 और 35, बट विच वन दैट वी डू नॉट नो विद द गिवन डेटा. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज जस्ट वन वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी. टू एंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम विद ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. So A is moving clockwise and B is moving anti-clockwise and they are starting from point P. A move कर रही है clockwise and B is moving anti-clockwise. They meet for the first time at 10 a.m. when A has covered 60% of the track. So when they are meeting for the first time, A has covered 60% of the track. A has covered more than 50%, यानी definitely A का speed ज़्यादा होगा. ठीक है, so let us say this is the point where they are meeting. So A has covered 60% track, so B must have covered 40% track, because total तो 100% कवर किया होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे. ठीक है, so they are meeting for the first time at 10 a.m. This meeting is happening at 10 a.m. Then question is saying if A returns to P at 10:12 a.m. रिटर्न कर रही है यानी कि पूरा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो P पे पहुंची है. पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में फर्स्ट एंड एट 10:12 a.m. यानी कि इट हैज ट्रैवल्ड दिस डिस्टेंस 40% ऑफ ट्रैक लेंथ. 40% ऑफ ट्रैक लेंथ कितने टाइम में ट्रैवल किया? 12 मिनट्स में. तो 10 पे यहां से स्टार्ट किया और फिर इसके आगे कंटिन्यू किया. एंड बी हैज कवर्ड 40% ऑफ ट्रैक लेंथ. ठीक है, ट्रैक लेंथ अगर L है तो 40% ऑफ L इन 12 मिनट्स. क्या ये पार्ट क्लियर है? देन क्वेश्चन इज आस्किंग कि B P पे कितना टाइम पे पहुंचेगी. तो इफ 40% ऑफ ट्रैक लेंथ has been traveled by ant A in 12 minutes, तो 60% ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा? 60% ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा? देखो, द पॉइंट इज इन द सेम टाइम ant A is traveling 60% distance and ant B is traveling 40% distance. So if time is same, तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड. डिस्टेंस इज गिवन 60% और 40%, 60:40 होगी. 60 और 40 मान लो. ठीक है, तो डिस्टेंस अगर 60 और 40 है फॉर एंट ए एंड एंट बी, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 3:2. 3:2 का रेशियो होगा. ओके, क्लियर. और एंट बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? अगर उसको पॉइंट पी पे पहुंचना है, ट्रेवल डिस्टेंस फॉर एंट बी विल बी 60%. दैट नीड्स टू बी कवर्ड बाय एंट बी. तो 60% डिस्टेंस कवर करने में एंट ए को टाइम कितना लग रहा है? पहले ये निकाल लेते हैं, उससे अकॉर्डिंगली एंट बी के लिए भी निकाल लेंगे, क्योंकि फिर डिस्टेंस सेम हो जाएगा. तो 40% ट्रैवल करने का टाइम इज 12 मिनट्स, यानी 40 यूनिट्स ट्रैवल करने का टाइम इज 12 मिनट्स. 20 यूनिट्स का टाइम कितना होगा? 6 मिनट्स. 60 यूनिट्स का टाइम कितना होगा? 12 + 6 यानी कि 18 मिनट्स. सो इन 18 मिनट्स एंट ए वुड हैव ट्रैवल्ड 60% डिस्टेंस. 60% डिस्टेंस. और स्पीड का रेशियो है एंट ए एंड बी का 3:2. तो अगर डिस्टेंस सेम होगा, इफ डिस्टेंस इज सेम,
तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। स्पीड का रेशियो 3:2, टाइम का रेशियो होगा 2:3, और 2 की वैल्यू हमें गिवन है। टाइम टेकन बाई एंट ए इन कवरिंग 60% डिस्टेंस दैट इज 18 मिनट्स। तो टाइम टेकन बाई एंट बी कितना होगा, 3 मिनट्स कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 9, तो 3 मिनट्स हो जाएगा हमारा 3 × 9 यानी कि 27 मिनट्स। 27 minutes will be the time taken by ant B to cover the distance from this meeting point. Let us say this point is M. So from M to P. From M to P, time taken will be 27 minutes. Okay. और 10 AM पे पहुंचे हैं M पे, तो टाइम होगा 10 + 27 यानी कि 10:27, ऑप्शन ए। This will be the time. Is this clear? ठीक है, क्या है पार्ट क्लियर है? अब कमेंट में मुझे मेंशन करना कि फर्स्ट मीटिंग तो होगी उनके 10 AM पे, सेकंड मीटिंग कब होगा, टाइम एट मीटिंग 2, व्हाट विल बी दैट टाइम? भाई फर्स्ट मीटिंग कब कवर हुआ, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, तो फर्स्ट मीटिंग हुआ है व्हेन दे हैव ट्रेवल्ड 1 सर्कुलर ट्रैक लेंथ टुगेदर, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, यू गॉट द हिंट। अब आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन T leaves station X for station Y at 3 PM. Train S traveling at 3/4 of the speed of T leaves Y for X at 4 PM. Two trains, train T and train S. Train T is leaving station X for station Y at 3 PM. And train S leaves at 4 PM. The two trains pass each other at a station Z where the distance between X and Z is 3/5 of that between X and Y. So distance between X and Z यानी कि XZ is equal to 3/5 of XY. तो XZ upon XY is equal to 3/5. तो अगर XY टोटल 5 यूनिट्स है तो XZ हमारा कितना है, 3 यूनिट्स है। So if let us say this is Z, so XZ if this is 3 यूनिट्स तो YZ कितना होगा, ZY कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा, तभी तो टोटल 5 आएगा। Is that clear? और XZ is the distance covered by, this distance is covered by train T, so distance covered by train T, and this ZY is the distance covered by train S. Okay, so also the question is saying train S traveling at 3/4 of the speed of T. तो speed of train S and speed of train T का रेशियो क्या है, 3 and 4, 3/4 का है। तो speed of train S is 3/4 of speed of train T। ठीक है, क्योंकि स्पीड से हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ना। आंसर अल्टीमेटली क्या है, आंसर इज हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक फॉर इट्स जर्नी। तो स्पीड हम कुछ भी मान सकते हैं और स्पीड हमें 3 और 4 का रेशियो में चाहिए, तो ट्रेन टी की स्पीड मान लो 4 km/h, तो ट्रेन एस की स्पीड आ जाएगी 3 km/h। ठीक है, तुम्हें 4 और 3 से तकलीफ हो तो 4s और 3s भी मान सकते हो, 4x और 3x भी मान सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट मैंने सिंपल मान लिया, इंटीजर में 4 और 3, एक और एक्स्ट्रा अननोन मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 4 और 3 को एज्यूम कर लिया। नाउ लेट अस से कि सबसे पहला काम, जब भी मीटिंग वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो इफ वन ट्रेन इज स्टार्टिंग एट द डिफरेंट टाइम फ्रॉम द सेकंड ट्रेन, तो पहली ट्रेन को पहले सेकंड ट्रेन के स्टार्टिंग टाइम तक चला लो। 3 PM पे ट्रेन टी स्टार्ट कर रही है, 4 PM पे ट्रेन एस स्टार्ट कर रही है, तो फ्रॉम 3 PM टू 4 PM डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन टी कितना होगा, दैट विल बी 1 आवर का टाइम है, यानी कि 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल बी 4 × 1 4 किलोमीटर। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट अस से दे आर टेकिंग T hours, टाइम टेकन आफ्टर दैट इज T hours। ठीक है, सो इफ T hours इज द टाइम टेकन आफ्टर दैट, so both trains will be traveling for T hours only. ठीक है, both trains are traveling for T hours only. Distance covered by train T will be 4 × T and distance covered by train S will be 3 × T. ठीक है, डायग्राम इज obviously not up to the scale, तो उस पर मत जाना कि 4T is smaller, 3T is larger. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया ट्रेन T का, 4 + 4T, 4 + 4T, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन T, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन S कितना है, दैट इज 3T, और इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 3:2। तो बस इक्वेट कर दो, दिस इज 3/2, इक्वेट कर दोगे सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो दिस विल बी 4 × 2, 8 + 8T इज इक्वल टू 9T, एंड हेंस T इज इक्वल टू 8 आ जाएगा।
टी विल बी इक्वल टू 8 आवर्स आ जाएगा। ओके क्लियर है। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे टी नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो टी टाइम का लग रहा है ट्रेन को फ्रॉम कवरिंग दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर कितना टाइम लगेगा कवर करने में, 1 आवर ऑलरेडी पहले ही ट्रेवल कर चुकी है तो 1 आवर यहां पे लगा था, तो 1 आवर प्लस 40, सॉरी 40 तो डिस्टेंस था, 1 आवर प्लस टी, सो दैट इज विल बी टी प्लस 1 आवर, लेकिन टोटल टाइम इन कवरिंग दिस डिस्टेंस वाज 9 आवर्स, 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9 आवर्स। ओके 9 आवर्स में 350 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, टोटल डिस्टेंस कितना है 5/3, अगर 1 मिनट ट्रैवल कर लिया 5/3 है टोटल डिस्टेंस, या 3 मिनट्स ट्रैवल कर लिया 5 मिनट्स ट्रैवल करना है, 3 मिनट्स ट्रैवल करने में टाइम लगा है 9 आवर्स का, तो 5 मिनट्स ट्रैवल करने में टाइम लगेगा 9 इंटू 5/3 दैट विल बी 15 आवर्स, आंसर विल बी 15 आवर्स। टाइम टेकन बाय ट्रेन टी इन गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई दैट इज 15 आवर्स। अगर ट्रेन एस के लिए टाइम पूछता तो कितना टाइम लगता, ट्रेन एस को 2 मिनट्स ट्रैवल करने में टाइम लगा कितना, टी आवर्स का, यानी कि 8 आवर्स का 2 मिनट्स ट्रैवल करने में, ठीक है। तो फॉर ट्रेन एस, टाइम फॉर ट्रेन एस 2 मिनट्स ट्रैवल करने में टाइम लगा है 8 आवर्स का, टोटल यूनिट्स करना है 5, तो 5/2 इंटू 8 आंसर भी 20 आवर्स फॉर ट्रेन एस। बट क्वेश्चन ने पूछा है ट्रेन टी के लिए, दैट इज वाई आंसर भी 15। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है, ठीक है। सो आंसर विल बी 15 आवर्स इन दिस केस, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, द क्वेश्चंस फॉर दिस सेशन, दैट्स ऑल। एंड आई बिलीव जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो समझ में आएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू एनी डाउट्स व्हाटसोएवर, कितना ही बेसिक डाउट क्यों ना हो, हमेशा कमेंट में पूछ लिया करो। अगर कमेंट में पूछने में दिक्कत हो तो तुम मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, यू कैन मैसेज मी ऑन ADITYAKT, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।